गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ चुके हैं रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जहां पे 4th ईयर के स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है एक इवेंट हैकाथॉन। हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं जो कि 4th ईयर वाले हैं, उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, हैकाथॉन के क्या फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स के लिए। हम आते हैं, बात करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर्स भी है। भैया सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है उज्जवल चौरसिया। आपका नाम है? मेरा नाम है मयूर सरकार। आपका? माई सेल्फ रणविजय भारती फ्रॉम 7th सेम CSC। अच्छा भैया, हैकाथॉन के क्या फ़ायदे हैं, आपके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, सब चीज़ डिटेल में बता दीजिए। जी, मैं बताता हूँ कि हैकाथॉन जो है वो एक ऐसा टेक्निकल इवेंट है जिसमें आपको जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, उसे आप सॉल्व करते हैं। जिनका आइडिया अगर पहले से हो चुका है तो ठीक, नहीं तो फिर स्टूडेंट्स अपना फिर खुद के लिए नया इनोवेशन लेकर के आते हैं, जो स्टूडेंट का माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। या तो वो कोडिंग के द्वारा कर सकते हैं या फिर कोई नया अप्रोच एटलीस्ट आइडिया लेकर के आ सकते हैं। हैकाथॉन कितने दिन के लिए आपने प्रिपेयर किया? हमने हैकाथॉन कराया है 3 दिन के लिए। पहला दिन आपका जो कि कल था, कल हो चुका आपका प्रेजेंटेशन राउंड RIS ऑडिटोरियम में। आज होगा फुल डे कोडिंग राउंड जिसमें होंगे 2 मेंटरिंग सेशंस। अच्छा। और इसके बाद कल हाफ डे होगा आपका कोडिंग राउंड, और हाफ डे के बाद इवेंट्स होंगे जिनमें फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको विनर रनर अप के साथ ट्रॉफी वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, और जो जजेस हैं, जो बताएंगे कि कौन जीता है, वो कहाँ से हैं? जजेस का नाम अभी डिस्क्लोज फिलहाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतना आपको मैं बता सकता हूँ कि वो 2 अलग अलग कंपनीज़ के CEO हैं। अच्छा जी, बाहर से आ रहे हैं मतलब? बाहर से आ रहे जजेस। अच्छा, जैसे कि हमने बात किया, हम चलते हैं अंदर और स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जो कि पार्टिसिपेंट्स भी हैं, और पार्टिसिपेंट्स के जो आइडियाज़ हैं लोग सीनियर से हम पूछते हैं। Good morning to one and all, and this is the second day of our hackathon, and the topic of our hackathon is Phoenix Hackathon, and these are some of the languages that we used in creating our websites, such like front end and the back end. And now we will see how our juniors and the seniors have created their projects from using their various technologies like AngularJS. Basically, this is for backend, and like C++, they are the programming languages, and Node.js, this is a language that we will use for the backend, and Django, this is a framework that we use for the Python, and this is a Git that where we use our projects and upload our repositories. And now we will see how our teams have contributed their projects. This is the first team, that the team name is Aishu, and he is the team leader, and they are from the 7th semester, and they are their team members, Rishabh Shahu from the 7th semester CSC, and she is Ojaswini Mahant, and she is also from the 7th semester CSC. Now they will explain their projects ideas based upon their topics and how they have worked for their projects. Let's see what they are explaining, and I think they are doing their projects based on the AI. Yeah, it's a good thing. So let's see what they have planned for the hackathon. So myself, Chetlavali Nikli, I am the team leader of this project. As I am saying that my project name is Aisha. It stands for Artificial Intelligence Based Smart Home Unit. It is used for making an artificial intelligence based dashboard. We are creating a dashboard which can be used for maintaining our task manager, and we are creating a neural network in this system, so that we can talk with the AI, so that it can generate the response according to our queries. So here's the second team. The team name is Binary Brain, and they are from the second year, and he's Sivanshu Mishra, and he's Khubchand Devangan, and he's Happy Singh.
So now let's see and for which topic they have prepared for the hackathon. And the interesting fact is that they have developed their website or something based on the electricity department, I think. Yes. So let's see how they have developed it. And now I will hand over the mic to Shivanshu Mishra. Now let's see how they have prepared for the hackathon. Good morning. I am Shivanshu Mishra from BTech CSE second year, and our problem statement was to develop a platform which connects the solar panel service provider and the solar power consumers. So as a solution of this, we are developing an entire ecosystem, a platform on which you just need to log in, and then you will be guided at every step. You will be provided everything which you need to install solar panel at your home, so that the pollution in the environment reduces, since more and more people would be opting for solar power consumption. So we can easily switch to renewable sources of energy and save our environment in the long term. Thank you. So I think that's a good idea that our juniors are preparing for, and they are contributing their ideas to the electricity department. And now we will move to our first semester juniors. That's a good thing that our freshers batch is contributing their ideas in the hackathon. That's a good idea. That's a good thing also for their college life and gaining some experiences from the hackathon. Now I will hand over mic to the team leader, and the team name is Alpha, and the team leader is name Krishna Dwivedi, and he is from first semester CSE. Now let's see for the which topic they are preparing for, and I will hand over mic to the Krishna Dwivedi, and now he will explain the project. Good afternoon. I am Krishna Dwivedi, and our project name is Worker Salary Hike and Data Management Systems. Manager is first, if the employee clicks on it, then it will open, and employee can log in by entering and enter password, in which we also adding a option for forget purpose. If he forgets his password, then he can change it. This is now if he can log in. After that, he can dashboard for use workers, then he can check his working hours, monthly goals, reviews, and total salary. After that, it can also check if he clicks on offer review, then he can see if he clicks on offer review, then he can see offer, in which he can review other employees which are working with him. And if he clicks on company stocks, then the next place will open, and he can see if he want to if the company has 100 stocks, then he can raise to 150 also, and or needs according to its needs too. After that, if manager logins, this is a bonus section. If he wants to take bonus from the company, then he can ask for bonus from the manager, and manager can approve it to give him the bonus. Next, this is the manager. Manager logging by putting his ID and password, then it will open. After that, he can see request, offer, company stocks, and the request comes from the other workers. He can see here, and he can request approved how many. He can also approve and reject them. After the view reviews, if open on view reviews, then it can see the name, employee ID, and review given by the co-workers. This is stock review, in which if any worker needs any stock increment, he will raise करना चाहता है. So after he can see how much amount of workers are wanted to raise the stocks. This is a bonus review, in which you can see that how much bonus are the workers asking for to get from them. This employee ID name, you can also search option, you can search, and this is the last. Thank you, sir. So a good thing is that considering their first semester batch, they are doing a great job, and I think they are preparing on a good idea. So I think that they will give a tough competition to all the team members, and I think they are preparing some projects on the employee system. Acha, worker salary. That's a good thing. So now the next team is Ode to Code, and they are basically solving the problems like the notification that the student could not get in the colleges, on the institutions, that if we perform any functions on any function that we perform, some students get mixed up with the notification. But now they have decided to develop such a system on the front end, on the back end, from where they will develop an alert system. From there, the students from login there can get the notification from the system. And now I will hand over the mic to the team leader. Name? My name is Sharon Babu.
and they are from the BCA. That's a good thing that the BCA students are also participating in the Hackfest. So now I will hand over the mic to Sharon Babu, and he is currently in second year of BCA. So let's see what they have prepared for. So currently my friend Rohit is working on the UI and I'm working on the academic section, and he is working on the back end, for example like my database for our project, and he is creating front end for us. So I was doing the work for create post for the website, and it's now completed. So he is working on the database. I am creating the help section that will help the students to ask for help from other students, so that in emergency situation they have somebody to help them. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो हम गिव अवे करने वाले हैं अपने इसी 10,000 की खुशी में। तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? हमारे जो रिसेंट वाले व्लॉग्स आने वाले हैं, रिसेंट वाले वीडियोज़ आने वाले हैं, उसमें सबसे पहले कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। अगर आप ज़्यादा लोगों तक मतलब ज़्यादा लोगों को आप हमारे चैनल से जोड़ते हैं तो आप ऐसे ही विनर हो जाएंगे, और काफ़ी एक्साइटिंग गिफ्ट्स हमारे गिव अवे के, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय है राजेश एंटरप्राइजेस। तो फटाक से जाके अपने दोस्तों को शेयर करिए ये वाली वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। तो मूविंग टू द थर्ड डे ऑफ द हैकाथॉन, लास्ट डे है ये हैकाथॉन का, जिसमें हाफ डे कोडिंग राउंड होने वाला है और हाफ डे जो होने वाला है इवेंट्स होने वाले हैं, डांसेस होने वाले हैं, बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें होने वाली है। और लास्ट में पता चलेगा कि जीता कौन है इस हैकाथॉन में, कौन सा पार्टिसिपेंट, कौन सा स्टूडेंट लास्ट में जीता है। तो मैं जानता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और काफ़ी ज़्यादा मतलब क्यूरियस होंगे कि जानने के लिए कि कौन सा टीम जीता है। तो एक गेस कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में कि कौन सा टीम जीता है। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको डे 3, जो कि मेंटरिंग सेशन होने वाला है। सारे जो बाहर से CEOs आए हैं, बाहर से जो कि जजेस आए हैं, आपको दिखाते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 भी हो गया, मेंटरिंग सेशन कंप्लीट हो गए, जो सीईओज थे, जजेस थे, वो भी आकर चले गए। अब क्या हुआ आनंद भाई, कौन सी टीम ने जीता, कौन सी टीम रनर अप आए, ये सब तो जो टीम जीती है आपके दिमाग में आ रहा है वो सही आ रहा है। जी हाँ, द चैंपियंस, टीम चैंपियंस जीते हैं ये हैकाथॉन राउंड, जिसके सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट थे और तीनों काफी होशियार थे। उनके प्रोजेक्ट्स काफी अट्रैक्टिव थे और काफी हेल्पफुल थे लोगों के लिए। तो हम हैकाथॉन के बाद डायरेक्ट निकल जाते हैं एंकर से बात
बात करने, क्योंकि यार एंकर से बात करना भी तो जरूरी है ना। हम अपने एंकर्स को कैसे भूल सकते हैं। तो चलो भाई एंकर से बात करते हैं। एंकर से बात करते टाइम हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी। बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकल के लोगों से भी बात करते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो भाई जल्दी दौड़ के चलते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर वाले से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं उनके रिएक्शंस, उनके ओपिनियन क्या होते हैं। तो फटाक से चलते हैं हम। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं बाहर, हम बात करने की कोशिश करते हैं लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम। जैसे कि इन लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो ना आप लोग सब? आप लोग का नाम क्या है? शिखा रानी तिवारी, रेणुका नायक, चित्रांशी ठाकुर। आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट सेमेस्टर में? फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो हैकाथॉन। बहुत अच्छा था और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला हमें यहाँ पर, ये कोडिंग करने के भी मिला है। तो अच्छा, आप लोग का प्रोजेक्ट किस चीज़ पर है? ई कॉमर्स बेस्ड था। थोड़ा एक्सप्लेन करिए डिटेल में। जैसे अमेज़ॉन, मीशोज वगैरह पे हम शॉपिंग करते हैं, सो ये उसी टाइप का एक वेबसाइट हमने क्रिएट किया है। तो बेसिकली हम उसी पे पूरा कोडिंग वगैरह किया है। कुछ अलग है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से? हाँ, यहाँ पे मतलब कि है बहुत कुछ अलग है, बट एज हम फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे बहुत कुछ ट्राई की कोशिश करने की अच्छा कर सके बस। कैसा एक्सपीरियंस था? जैसे कि आपके सीनियर्स ने ये ऑर्गेनाइज किया था फोर्थ ईयर वालों ने, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ चीज़ सीखने को मिला है कि हाँ एक्चुअली ये सब होता है हैकाथॉन में। हम लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बट जब पार्टिसिपेट करें तब पता चला एक्चुअली ये है हैकाथॉन में। तो बहुत मज़ा भी आ रहा है साथ में और सीखने को भी मिल रहा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा? आप शांत हैं काफ़ी। जो भी था अच्छा था, जो भी हुआ अच्छे से किया हम लोगों ने। आप भी टीम में? यस सर। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है टीम में? मैं बस अभी फर्स्ट ईयर में हूँ ना, तो मैं सीख रही हूँ। आप मतलब साथ में? हाँ। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। तो हम बात किए लोगों से, हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो कि आप लोग भी सब हैकाथॉन में ही हैं? जी सर। कौन से सेमेस्टर वाले आप लोग? मैं BCA फर्स्ट ईयर वाले हो। आप लोग अपना नाम बता दो। मेरा नाम मयंक साहू है। प्रकाश पांडे। आप लोग की टीम का क्या नाम है? O2 कोड। O2 कोड वाले। आप लोग क्या बना रहे हैं? आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ पर है? हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है स्टूडेंट लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके आगे मेरा दोस्त बता रहे। इसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट की जो एकेडमिक, सोशल और पर्सनल लाइफ है वो तीनों को मैनेज करना चाहते हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहाँ पे वो अपने एकेडमिक्स भी मैनेज कर पाए, सोशली लोगों से कनेक्ट भी हो पाए और पर्सनल भी कुछ काम कर पाए। अच्छा, मतलब मल्टीटास्किंग टाइप करेगा? हाँ। अच्छा, आप लोग फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं हैकाथॉन? फर्स्ट टाइम। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस ठीक था, कुछ नया सीखने को भी मिला। अच्छा, आपको लग रहा है आप जीत जाएंगे? लग तो रहा है। लग रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ पे हम लोग एंकर से बात करते हैं जो कि फोर्थ ईयर वाले हैं। अभी आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद दानियाल कमर और मैं फोर्थ ईयर CSE से हूँ। सो मैं और शिक्षा यादव ये फोर्थ ईयर सिविल से, हम दोनों एंकर्स हैं इस KV इन्फिनिटी कोडर्स टेक फेस्ट हैकाथॉन के। सो आज दूसरा दिन था हैकाथॉन का। तो आज कल प्रेजेंटेशंस हुए सारे टीम्स के, काफ़ी अच्छे रहा, ठीक है। और आज कोडिंग राउंड्स थे, तो आज अलग अलग ग्रुप के जो मेंबर्स थे उनका प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट किया गया, ठीक है। इवैल्यूएशन में फिर जो मेंटर्स थे उनको सजेशंस मिले, ठीक है, उन्हें गाइड किया गया, फिर उन्होंने इंप्रूवमेंट दी। कल लास्ट राउंड है, तो कल और लास्ट डे भी है कल, तो उसमें उन लोगों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सबमिट करना है, ठीक है। और कल अलग अलग क्लोजिंग सेरेमनीज एटसेट्रा काफ़ी चीज़ें होंगी। अच्छा, आप लोग जैसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवा रहे होंगे, आप लोग फोर्थ ईयर वाले हैं, आप लोग पार्टिसिपेट तो कर चुके होंगे? बहुत पार्टिसिपेट कर रखे, पहले पार्टिसिपेट कर रखे हैं। तो आप लोग जैसे फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऑर्गेनाइज करवाने में? देखो, सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना ईजी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊँगा कि ज़्यादा एफर्ट्स ना मेरे जितने क्लासमेट्स हैं उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। मैं फ़िलहाल एंकरिंग कर रहा हूँ बस, ठीक है। जो मेरे क्लासमेट्स हैं उन्होंने यार अलग अलग चीज़ें अरेंज करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं, ठीक है, चीज़ें प्रिंट करानी है, चीज़ें खरीदनी है, वो लोग दूर दूर जाके यार मतलब मैनेज करके ख़रीद के लाए चीज़ें, ठीक है। कितने चीज़ें हुए ना कि शॉर्ट नोटिस पे लाने पड़े, ठीक है। रात को 10:30 बजे पता चल रही है और सुबह 8 बजे अवेलेबल कराना है। तो यार ऐसा होता है ना कि रात 2 बजे तक प्लानिंग चल रही है, ठीक है, 2-3 बजे तक बैठ कर प्लानिंग चल रही है, उसके बाद फिर यार सुबह उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और फिर कॉलेज भी आना है वो सब करने के लिए, ठीक है। काफ़ी हेक्टिक था उनका शेड्यूल, ठीक है। मैं तो फिलहाल एंकर हूँ बस, ठीक है। और भी कोऑर्डिनेटर्स हैं। मैम, आपको क्या क्या प्रॉब्लम? आप एंकरिंग बस कर रहे हैं? हाँ, आप एंकरिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ के जो वॉलेंटियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज करके कर ली हैं। बाकी हैकाथॉन का जो मेन हमारा है इनोवेशन ही है,
तो जितने भी जूनियर्स हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों से इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी और एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, क्या नहीं यूज़ करना है, क्या रूल्स है रेगुलेशंस, उसके अकॉर्डिंग वो लोग सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग ठीक है एंकर्स हैं, कर रहे हैं, बट सारा इस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए सारा कंट्रीब्यूशन लगभग हमारे कोऑर्डिनेटर्स, वॉलंटियर्स, उन लोगों को सबसे ज़्यादा जाता है। अच्छा मैम, इससे पहले आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जैसे कहीं एंकरिंग वगैरह की है? हाँ, इंजीनियर्स डे हुआ था इससे पहले हमारे कॉलेज में, तो उसमें मैंने किया था। ओके थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे हमने बात किया काफ़ी सारे कोडर्स से, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स से, टीचर्स से और सारे मतलब जो अपने ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आज की वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ क्योंकि यार सारा प्रोग्राम आज का जो था ख़त्म हो चुका है। और अगर अभी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप ही लोग का चैनल है। रुंगटा कॉलेज में पहली बार ऐसा सीन हो रहा है जो कि ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं हमारे सीनियर्स, मेरे भी सीनियर्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमें सीखने के लिए मिल रहा है काफ़ी कुछ। हम भी नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज करवाएंगे और भी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं।